Good morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start chapter 2 from our book Hornbill. Name of chapter 2 is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Here we refers to the family members of the narrator, and this is a statement spoken by one of the main character, the son of the narrator, Jonathan. Written by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook is actually the narrator of this chapter, and Alan East may have helped the narrator. This chapter is a travelogue. ट्रेवलॉग मीन्स क्या है? यात्रा वृत्तांत, जिसमें किसी यात्रा का वर्णन किया गया हो, वो लेख। तो यहाँ पर एक वोयाज का वर्णन किया है नरेटर ने। लेट्स डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1 इज नरेटर. ही इज 37 years old. He is a man of great courage and commitment. He proved to be the best father. Next one is Mary. She is the wife of the narrator. She always stood by her husband in every condition, in every situation. Next one is Susan. She is 7 years old, daughter of the narrator. Shortly she is known as Sue. Next one is Jonathan. He is 6 years old, son of the narrator. In short, he is known as John. Next one is Larry Vigil. He is an American crewman who helped a lot in the bad condition. Next one is Herb Sizzler. He is a Swiss crewman. He also helped the family in the bad weather to rescue the ship. There are made 6 characters, and there is one name also. Name is Wave Walker. Wave Walker. It is a boat. It was 23 meter long and 30-ton wooden hulled boat. Wooden hulled boat means क्या है? Made of wood planks. Here, in this description, the narrator is giving first person account, first person narration of the story. First person narration means क्या है? The narrator is using I, we, first person pronouns in the story. Let's take an introduction of the story. Here, the narrator. Who is the narrator? Gordon Cook. Decide to duplicate the voyage which was made 200 years ago by Captain James Cook. After deciding it, he started preparation for the voyage with the help of his wife Mary. Both husband and wife prepared for the journey. They made the ship Wave Walker, and they tested this ship in the roughest weathers they can. And now their journey starts in July 1976 from Plymouth in England. They started from Plymouth in England, and now they have to reach Australia. They had to take a stay at South Africa, and from there they took Larry Vigil and Herb Sizzler as their helpers, because they knew the next part of the journey will be having the roughest sea of the world. The Indian Ocean, Southern Indian Ocean, is known as the roughest sea in the world, and now they have to proceed through that sea. That's why they took Larry Vigil and Herb Sizzler as the helpers. But
When they faced the bad weather, the situation of everyone was very pathetic. They faced difficult situations, and at last they reached their destination, Australia. Students, let's discuss the chapter line by line. अब तक बेटा जो पढ़ा उसको एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। क्या पढ़ा हमने? नरेटर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक सी वॉयाज पर निकलता है, और वह इस सी वॉयाज पर इसलिए निकलता है क्योंकि वह कॉपी करना चाहता है जो 200 ईयर्स बिफोर सी वॉयाज की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, उसकी कॉपी करने के लिए वो निकल पड़ा है। इससे पहले उन्होंने प्रिपरेशन की थी, तैयारियां की थी इस सी वॉयाज की। बोट जो वेव वॉकर है वो तैयार की थी, उसकी टेस्टिंग की थी, जितना भी रफ वेदर रफ सी वो पा सकते थे उसमें उन्होंने उसकी टेस्टिंग की थी। अब उन्होंने इस सी वॉयाज के लिए 3 साल का टाइम निर्धारित किया है, और जो डिस्टेंस है वो है 2,55,000 किलोमीटर्स, जो कि इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक उन्हें पहुंचना है। अब फर्स्ट फेज है उनकी जर्नी का, वो है प्लाईमाउथ से साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक, और ये फेज उनका बड़े आराम से गुजरता है, बड़े एंजॉय करते हुए वो केप टाउन पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि नरेटर को पता है कि आगे जो सी है वो वर्ल्ड के रफेस्ट सी में से एक है, इसलिए केप टाउन पहुंचने पर नरेटर टू प्रोफेशनल हेल्पर्स ले लेता है, लैरी विजिल और हब सिजलर को। अब वो वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही उनको दूसरा दिन हुआ वहाँ से निकले हुए, केप टाउन से चले हुए सेकेंड डे, देखते हैं कि बहुत ही गेल्स आ जाते हैं समुद्र में, तेज हवाएं चलने लगती हैं। और दूसरी चीज़ नरेटर देखता है कि ये हवाओं से तो इतना डर नहीं था, बल्कि जो लहरें इसके पीछे उठ रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही हॉरिबल थी, डरावनी थी। क्यों? क्योंकि लहरें थी वो बहुत ऊंचाई पर 15 मीटर की हाइट तक उठ रही थी, जो कि समुद्र के मार्च तक की हाइट थी। अब रफ वेदर को देखते हुए वो अपनी बचाव की सब तैयारियां करते हैं। हर चीज़ को डबल रस्सी से बांध देते हैं, अपने लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, मोमजा में पहन लेते हैं, और सभी जो बचाव के काम हैं वो कर लेते हैं। अब वेदर की स्थिति है वो उम्मीद करते हैं कि सुधरेगी, और इस उम्मीद में वो रफ वेदर में भी अपनी जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, उसको सेलिब्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो उनकी स्पीड है वो 8 नोट्स है, 8 समुद्री मील की गति से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट जैसे उन्होंने उम्मीद की थी कि मौसम में बदलाव आएगा, वेदर कुछ चेंज होएगा, चेंज तो आया, बट वो क्या था, बद से बदतर हो गया, और वेदर है, कंडीशन है वो खराब हो गई, बैड से वर्स हो गई, और सुधार नहीं हुआ। अब लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठने लगी, और सबसे डरावनी बात हुई अगले दिन, जब शाम को 6 बजे उन्होंने देखा कि उनकी जहाज के जस्ट पीछे एक घना अंधेरा छा गया है, और एक बादल जैसा कुछ है, परंतु ये बादल नहीं था, ये एक समुद्री लहर ही थी, जो कि जहाज के ऊपर एक प्रचंड धारा के रूप में फूट पड़ती है। और नरेटर है उसका स्टीयरिंग व्हील छूट जाता है, तेज लहर की वजह से वो समुद्र में जा गिरता है। जब समुद्र में जा गिरता है तो वह महसूस करता है अनकॉन्शियसनेस को, बेहोश होता जा रहा है, और उसे लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, और वो पीसफुल माइंड से इसको स्वीकार कर लेता है। बट तभी एक और लहर आती है जिससे नरेटर पानी से बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि वेव वॉकर लगभग पलटी हुई थी वो भी सीधी हो जाती है। अब वो क्योंकि लाइफ जैकेट पहने हुए थे, प्रिकॉशंस लिए हुए थे, इसलिए जो रेलिंग है बोट की उसको पकड़ करके वापस वेव वॉकर में आ जाता है। अब जैसे ही वेव वॉकर में आता है तो लहरें उसे टॉस करती है, ऊपर उठाती हैं, डेक के ऊपर पटकती हैं, जैसे कोई वो चिथड़े की गुड़िया हो। इस तरह से उसको पटका जाता है लहरों के द्वारा, उसकी जो रिब्स हैं वो टूट जाती हैं एक साइड की, और उसका मुंह पूरा खून से और टूटे हुए दांतों से भर जाता है। अब नरेटर जैसे तैसे करके स्थिति काबू में करते हुए स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचता है और उसको पकड़ लेता है। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा है। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared.
फ्रंट हैच, हैच मीन्स क्या है, डोर मेड इन द डेक ऑफ द शिप, जो जहाज का डेक है उसमें जो दरवाजा बना हुआ है सामने वाला, अचानक वो ओपन होता है और मैरी वहां से दिखाई देती है, नजर आती है। वी आर शिंकिंग, कौन बोल रहा है, मैरी बोल रही है, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स क्या, क्राइड, वह चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स क्या, ब्रोकन, कि जो डेक्स है वो टूट रहे हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, जो हमारी शिप है, जहाज है, वो पूरी पानी से भर रही है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, अब तुम व्हील को पकड़ो, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, मैं चीखा जब मैं आगे बढ़ा। स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जो दरवाजा था उसके साइड बढ़ा। स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्या, स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल्ड, संघर्ष करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। और मैरी को क्या कह दिया कि तुम व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, मैडमैन मीन्स क्या, क्रेजी। लैरी और हर पंप कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे पंपों से, पागलों की तरह से जुटे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, टिम्बर्स मीन्स क्या, वुड्स, जो लकड़ियां थी, जो सैतीर लगाए गए थे, वो टूटे हुए थे, वो लटक रहे थे क्रेजी एंगल्स की तरह से, मैड, पागलपन से लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड मीन्स क्या, राइट साइड ऑफ द शिप, साइड बर्ड इनवर्ड, जो पूरी राइट साइड थी जहाज की, वो क्या हो गई थी, अंदर धंस गई थी। बर्ड मीन्स क्या है, धंस जाना, अंदर धसी हुई थी, अंदर की तरफ धसी हुई थी। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, कपड़े थे, बर्तन थे, चार्ट्स थे, छोटे छोटे जो टीन्स थे, कैंस थे, वो खिलौने, सब कुछ पानी में तैर रहे थे। स्लोश्ड मीन्स क्या है, मूविंग नॉइजली, शोर करते हुए, मीन्स सारी चीजें, जो भी सामान था वो मिक्स हो रहा था पानी में, इधर उधर फैल रहा था, आवाज कर रहा था, गहरे पानी में सब चीजें तैर रही थी। आई हाफ स्वैम, हाफ स्वैम मीन्स क्या है, आधा तैरते हुए। हाफ क्रोल्ड, हाफ क्रोल्ड मीन्स क्या है, क्रोलिंग मैनर, रेंगते हुए। इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, कहाँ पहुंचा, बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक मीन्स क्या है, प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने की जो जगह बनाई गई थी वो। उन्होंने ऊपरी बंक से, ऊपर जो बर्थ थी सोने की, वहां से उत्तर दिया कि वो ठीक थे। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सैड शू, शू कौन है, सुजैन। शू ने कहा, परंतु मेरे सर में थोड़ी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबो हर आइज, बम्प मीन्स क्या है, एक उभार, बल्ब, जो सिचुएशन थी, एक उभरा हुआ उसकी आंखों के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए शिव ने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास कोई समय नहीं था ऐसे, बम्प्ड मीन्स क्या, स्वेलिंग कह सकते हैं, ऐसे सूजे हुए सर के लिए, मीन्स उसके सोचने के लिए वक्त ही नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा ढूंढने के बाद, स्क्रूज एंड कनवास, मैंने स्क्रू और कनवास, कनवास मीन्स कहता है रफ क्लोथ, मोटा जो क्लोथ होता है वो, ये सब ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस संघर्ष करते हुए डेक के ऊपर पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, स्टारबोर्ड क्या है, राइट साइड ऑफ द शिप, उसके साथ साथ मैं पहुंच गया था, कहाँ पर, साइड बेस्ट ओपन, बेस्ट मीन्स क्या है, जो कि टूटी हुई थी, मिक्स हो गई थी, स्मैश्ड हो गई थी, वहां पर। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ, कुछ मैनिंग नहीं करता हूँ जहाज में, तो निश्चित था कि हम डूबने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरह मैंने मैनेज किया, कंट्रोल किया, जो कनवास था, मोटा कपड़ा था, उसको खींचने का। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो ओपन होल्स थे, जो क्रैक्स आ गए थे, जहाँ से पानी आ रहा था, उनके ऊपर सिक्योर किया,
जो वाटरप्रूफ हैच था, जो गेट थे उनको, कवर को, जो खुले हुए छेद थे उनके ऊपर लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अब भी बह करके आता रहा नीचे से, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु इसमें से ज़्यादातर था अब वो कम हो गया था, साइडों में से बह करके जा रहा था। डिफ्लेक्टेड मीन्स क्या, मूड अवे, साइड में से बह रहा था, ज़्यादातर साइड में से बह करके जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, और ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई जब हमारे जो हैंडपम्प थे वो ब्लॉक हो गई, वो उनमें कचरा फंस गया। अब विद द डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स क्या, डार्ट, जो उसने बताया था ना, जैसे टॉयज थे, टीन्स थे, क्रोकरी थी, ये आइटम्स पानी में बह रहे थे, उनकी जो थिंग्स थी, यही अब वाटर पंप्स में उलझ जाती हैं, आ जाती हैं, और वो क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड, डेब्रिस मीन्स क्या, डर्ट, जो गंदगी थी जो बह रही थी आसपास, द केबिन्स, केबिन के पास, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हैंड पंप थे, हाथ के पंप थे उनमें तो कचरा फंस गया है, और जो इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि पानी को बाहर कैसे निकाला जाएगा। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंग मीन्स क्या है, फियरफुल, और डरावना होता जा रहा था। पानी का जो लेवल था, स्तर था, बढ़ता जा रहा था, जो कि भयंकर था, खतरनाक था, डरावना था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। अब वापस डेक के ऊपर आकर के मैंने पाया कि जो 2 हमारे स्पेयर एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो भी क्या हो चुके थे, रेंज मीन क्या है, ब्रोकन, मुड़ जाना, टूट जाना, वो भी ऊपर ही क्या हो गए थे, मुड़ गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे। अलोंग विद द फोरस्टे सेल, फोरस्टे मीन्स क्या है, सामने वाला जो सेल था, फ्रंट बिग सेल था वो, उसके साथ द जिब, जिब मीन्स क्या है, सेल ही है जो कि तूफान में, स्टोर्म में काम आता है, उसके साथ द डिंजीज एंड द मेन एंकर। डिंजीज क्या है, स्मॉल बोट्स, जो छोटी छोटी बोट्स थी वो भी, और जो मेन एंकर था, एंकर हम कह सकते हैं ए हैवी मेटल डिवाइस विच इज यूज टू स्टॉप द शिप्स मूवमेंट, ब्रेक कह सकते हैं हम, यहाँ पर मान सकते हैं कि जो जहाज को ब्रेक लगाने के लिए एक काम करने का यंत्र था वो भी, ये सब ओवरबोर्ड के ऊपर रेंच हो गए थे, टूट फूट गए थे, इनके साथ जो पंप थे वो भी शत विशत हो गए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो कि चार्ट रूम में फर्श के नीचे था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने इस पंप को जोड़ दिया जो बाहर पानी निकालने का पाइप था उससे, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं भगवान का धन्यवाद किया ये पा करके कि यह काम कर रहा था। जो ये पंप नीचे चार्ट रूम से लाया गया वो वर्किंग था, इसलिए अच्छा लगा, भगवान का धन्यवाद किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, अब जो रात्रि थी वो पसर रही थी, ड्रैग्ड ऑन मीन्स क्या, घसीटना, विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, पूरी रात बहुत ही ठंडी, अत्यधिक ठंडी, और जो हैबिचुअल पंपिंग थी वो करते हुए हम घिसटते जा रहे थे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, आगे स्टीयर कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और रेडियो के ऊपर काम कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, अब रेडियो पे काम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कॉन्टेक्ट करने की। मेडे कॉल्स, मेडे कॉल्स क्या होते हैं, वो एजेंसी जो कि शिप्स को मार्ग शो करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए काम करती है, उसको कॉल लगा रहे थे, उससे कॉन्टेक्ट स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी रेडियो के माध्यम से। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इज इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आश्चर्य की बात नहीं थी। रिमोट मीन्स क्या, डिस्टेंस, जो कि अब कहाँ पर थे, हम बहुत दूर थे संसार में, रिमोट एरिया में थे, जिससे जो मेडे कॉल्स थी, जो कांटेक्ट था, बचाव प्रणाली के पास, उसको हम कॉल स्थापित नहीं कर पा रहे थे।
शूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली। शू का हेड था वो बहुत ही चेतावनीपूर्ण, बहुत ही चिंतित करने वाले ढंग से स्वेलो हो गया था, सूज गया था, बल्ग हो रहा था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दो बड़ी बड़ी बिग, इनॉर्मस के बिग आंखें, काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें एक गहरा कट भी दिखाया था उसकी बाजू पर। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, जब मैंने उससे पूछा कि उसने इस घाव के बारे में, इस इंजरी के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, परेशानी में नहीं डालना चाहती थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3 जनवरी की सुबह तक, the pumps had the water level sufficiently under control. जो पंप्स थे उन्होंने वाटर लेवल को, पानी के स्तर को काफ़ी कंट्रोल में कर लिया था, नियंत्रण में कर लिया था, इनफ था for us to take 2 hours rest, कि हमारे लिए इतना पर्याप्त हो गया था कि हम 2 घंटे रेस्ट ले सकते थे इन रोटेशन। रोटेशन मीन्स क्या, बारी बारी से, टर्न बाय टर्न हम बारी बारी से आराम कर सकते थे। कौन कौन आराम कर सकते थे, कौन कौन पंपिंग का काम कर रहा था, लैरी, हार्ब और नरेटर, तीनों अब बारी बारी से रेस्ट कर सकते थे क्योंकि वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया था 3 जनवरी तक। बट स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर, परंतु अब भी कहीं पर, ट्रिमेंडस मीन्स क्या, वेरी बिग, बहुत बड़ी लीकेज थी, पानी कहीं से अधिक मात्रा में अब भी आ रहा था। बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, जो वाटर लाइन थी उसके नीचे और चेक करने पर पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, मैंने पाया कि लगभग जितनी भी बोट्स थी, जितनी भी किश्तियाँ थी वो सभी, दैट रियली ऑल द मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड, पाया कि जो ज़्यादातर रिब मीन्स क्या, जो फ्रेम थी, लकड़ी की बनी हुई जो फ्रेम थी बोट की, वो सभी टूट गई थी। डाउन टू द कील, कील मीन्स क्या कहेंगे, तल। ए वुडन और स्टील लॉन्ग पीस दैट ले द बॉटम ऑफ द शिप, जहाज की जो तलहटी है वहाँ पर जो बड़ा चौड़ा फट्टा लकड़ी का हो या स्टील का हो वो लगाया जाता है, उसको कील कहते हैं। वहाँ तक सब कुछ टूटा हुआ था, जो मेन रिब थी, जो लकड़ी की बनी हुई फ्रेम थी, वो सब टूट चुकी थी। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, वास्तव में अब कुछ नहीं बचा था जो कि इस पूरे पार्ट में, जो कि जो स्टारबोर्ड था, जो राइट साइड थी शिप की, उसको पकड़ के रखता, उसको बांध के रखता। स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, जो स्टारबोर्ड हल था, बनाया गया था, उसमें सिर्फ क्या बचा था, कुछ कबर्ड्स बची थी, कुछ अलमारियाँ या जो पार्टीशन किया गया था, बंटवारा किया गया था, बांटा गया था, वो पार्ट वहाँ पर बचा था और बाकी सब कुछ टूट गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, हम 15 घंटों तक ऐसे ही सर्वाइव करते रहे, बचते रहे, जीवित रहे जब तक कि लहरें आई। बट वेवोकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, परंतु जो वेवोकर थी अब ज़्यादा लंबे समय तक टिक करके नहीं रह सकती थी हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के समय तक। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small आइलैंड्स, मैंने जो चार्ट्स थे मीन्स जो मैप थे उनको देखा और कैलकुलेट किया, गणना की, अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर तो छोटे आइलैंड्स थे, ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, जो कि ईस्ट साइड में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और एक ही उम्मीद थी हमारी कि जो पिन प्रिक्स है, पिन प्रिक्स मीन्स क्या, वेरी स्मॉल,
सुई के बराबर जो जगह थी, इतने बड़े समुद्र में इतने छोटे छोटे जो आइलैंड हैं वो छोटी सी चीज़ महसूस हो रही है, तो उसके लिए पिनप्रिक्स बोला है राइटर ने। इतने बड़े समुद्र में एक छोटा सा टापू था, वो हमें मिलने वाला था, ये उम्मीद थी हमें। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हाइस्ट सेल। और जब तक जो विंड है और जो सीज है वो अबेटेड मीन्स क्या है, लेस फ्यूरियस, कम आक्रामक नहीं हो जाते उस समय तक, सो वी कुड हाइस्ट सेल, तो तभी हम आगे सेलिंग कर सकते थे, नाव को आगे बढ़ा सकते थे, जहाज को। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांस थे वो बहुत ही कम थे वास्तव में। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी बड़ी लहरें थी उन्होंने जो हमारा हेल्पिंग इंजन था, जो हेल्पर इंजन था, सहायक इंजन था साथ में, वो भी काम करना बंद कर दिया था। स्टूडेंट्स, we have discussed till here. In next video we will continue. I hope it is clear to you. Thank you.